कोयले के घोटाले में पूर्व सचिव पारक का पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और एक विस्फोटक है। उन्होंने कहा था 2005 में कि सरकार में ही कोल माफिया मौजूद है और बहुत ज्यादा कालाबाजारी कोल के क्षेत्र में हो रही है। 4 बातें उन्होंने कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि बहुत सारे सांसद हैं जो मुझ पर भारी दबाव बना रहे और जब पारदर्शिता लाने की उन्होंने कोशिश की, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। हम मांग करते हैं कि पारक का पूरा पत्र सार्वजनिक होना चाहिए और हम प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि पारक ने किन सांसदों के नाम लिए थे, कौन वो सांसद थे जो दबाव बना रहे थे कोल खदानों के बारे में। और ये जो कोल माफिया सरकार में है, इसका क्या संज्ञान सरकार ने लिया और क्या उपाय किए। द प्राइम मिनिस्टर ओज आंसर्स to the questions and issues raised by former coal secretary Mr. Parak. He has raised very valid issues in his letter in 2005, where he has said that the coal mafia exists in the government. He also said that there is large scale black marketing happening in the coal sector. And more importantly, he has said that many MPs are bringing tremendous pressure on him. If what is reported is true, it is the duty of the Prime Minister to answer these allegations. Who were those MPs? Name them. Take nation into confidence. And what action he has taken against those MPs. Then what action he has taken against the coal mafia in the government. These are very serious charges. And only Prime Minister can answer because he was heading the coal ministry after Shibu Soren. Now PM says that he is ready to go to CBI. He had already said in 2G scam that he is ready to appear before PSC. He never appeared before PSC. He even never appeared before JPC. So to say that I am ready for probe does not mean, the past record shows that he speaks one thing and in reality he doesn't makes available himself for the probe. We still hope that the Supreme Court, which is monitoring the investigation, will take cognizance of all these developments and moreover ask the CBI to go after the money trail, because money trail is the key component. See, this can't be given for free. So there was large scale corruption. So where the money has gone, who has taken, who is the bribe giver, it is easy to find out. Who is the bribe taker and where the money has gone. कोल खदानों के पूरे मामले में जो बहुत बड़ा घोटाला जो है वो अंधाधुंध तरीके से बांटने का है और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है
उसके जड़ तक अगर जाना है तो सीबीआई को ये भ्रष्टाचार के मामले, यानी किसने पैसा दिया, कितना दिया, किसको दिया और वो पैसा अब कहाँ गया, ये ढूंढना जरूरी है. इज पीएम रेडी to ask specifically CBI, which is controlled by his ministry, to do that investigation? His joint secretary goes and changes the status report. How in such a scenario the CBI will be probing the PM? That's why we said that he will have to first relinquish his post and then appear before the CBI. राहुल गांधी के भाषण पर पूरे देश में उसकी भर्त्सना हो रही है, उसकी विरोध में सब लोग बोल रहे हैं. हम पूछना चाहते देश के गृह मंत्री को कि वो बताए कि कौन सा आईबी अधिकारी मिले, राहुल को इनपुट दिया, क्या वो ब्रीफिंग उनको भी दिया था कि नहीं, और अगर उनको ये ब्रीफिंग मिला था तो उन्होंने क्या कार्रवाई की. बीजेपी विल लाइक टू आस्क द होम मिनिस्टर whether the inputs given to Rahul Gandhi by some IB officers, whether that input has been given to Home Minister or not, and if yes, then what steps he has taken. Now why suddenly IB and Home Minister are hiding, have gone into hiding and not telling the truth? They must tell the truth, whether these were the credible input or not, who gave inputs to, and in what capacity. And therefore, BJP will continue to raise till government explains. Government must explain. Shinde has a duty to the nation to tell the truth on whether there was input of ISI getting in touch with the some youths in Muzaffarnagar post-riot. And the riot victims have vehemently denied it. Riot victims have said, we are Indians, we are not Pakistanis. We have nothing to do with Pakistan agencies. But still you are saying that they are in touch with Pakistan agencies. And here is the Congress leader who says that IB told me and I am in also. ISI is in touch with those youths and I am also in touch with those youths. That's what he said. So ISI and Rahul Gandhi are in touch with those youths and Home Minister is not aware. What is the intelligence apparatus we have? ये कैसा इंटेलिजेंस है कि जो राहुल गांधी को ब्रीफ करता है और वो गृह मंत्री को ही बताते नहीं. संविधान के अनुसार आईबी का इनपुट गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, तीसरे किसी को नहीं मिलना चाहिए. यहां तो गृह मंत्री को ही पता नहीं. अगर है तो बता दे क्या इनपुट था, या बता दे कि ये इनपुट नहीं है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. कितना गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस के नेता कर रहे हैं. We want to ask that will responsible leader share any intelligence input from any source to the authorities or in a public rally? अगर समझो किसी को कोई खुफिया जानकारी मिलती है किसी के भी द्वारा, तो एक जिम्मेवार नेता जिसको देश चलाने का जो वोट मांग रहा है, तो ऐसा जिम्मेवार नेतृत्व ये खुले सभा में ये बात बताएगा या जिनसे बात करनी चाहिए उन अधिकारियों से बात करेगा? क्या करेगा?
जिम्मेदारी किसको कहते हैं? और ये जिम्मेदार बर्ताव नहीं था, और इसलिए, और हमने तो कल भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा कि ये मुसलमानों के देशभक्ति पर आप शक कर रहे हो। जिनको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान गए विभाजन के समय, और उनको आतंकवाद से जोड़ते हो पूरे कौम को। ये काहे की वोट बैंक की राजनीति है? वहां सपा के नेता नरेश गोयल जी को, कुल मिला के सपा के नेता नरेश अग्रवाल, हाँ नरेश गोयल बोला कि मैंने, हाँ, सपा नेता नरेश अग्रवाल और अन्य सपा नेताओं को क्या हो गया? बौखला गए हैं। एक ने कहा कि शरणार्थी शिविर जो, यानी जो रिलीफ कैंप है, राहत शिविर, वो राहत शिविर में घर से भी ज्यादा अच्छा सुविधाएं है। हद हो गई। और ये तो महिलाओं के बारे में इतना भयंकर बोले हैं, हम मांग करते हैं कि वो माफी मांगे। हम उनके, महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है, उनके बयान की हम भर्त्सना करते हैं। और अगर महिला आयोग ने उस पर कार्रवाई का सोचा है तो वो कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। एक लास्ट छोटा मुद्दा लेकिन महत्वपूर्ण है। आंध्र और उड़ीसा में जो बहुत भारी बारिश है, उससे धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को तुरंत राहत की जरूरत है। पिछले साल आंध्र में ऐसा ही चक्रवात आया था, तब आंध्र सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए मांगे थे, केंद्र सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि जितना राज्य सरकारें मांगती है उसका 5% ही देती है। तो इस बार तुरंत आंध्र और उड़ीसा में केंद्र पहले किस्त में तुरंत सहायता करे, ये भी हम मांग करते हैं। मेरे तरफ से इतना ही है आज।